Hello everyone, I hope you all are fine. So students, once again we are here to continue our topic, the topic which we were discussing for the last two sessions, and today is the last session of the topic in the earliest cities. And in this chapter, as you know, we have studied about the civilizations and most importantly the civilization of Indus Valley. Indus Valley civilization, we had studied about it, about different things, about its chief features like buildings and houses, drainage system, town planning, great path, great granaries, houses. Then we talked about the social groups of people. Then we came to the carving, painting, seals, and on seals we finished the last session. And though it is the last session for the chapter, let us continue. And here is the heading, social and economic life of the people, कि इस सिविलाइजेशन में लोगों की सोशल और इकोनॉमिक मीन्स उनकी सोसाइटी कैसी थी और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, how they used to survive and how they used to, means what type of social customs they used to follow. So here we are going to start with the heading dress and ornaments. तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है ड्रेस, कि वो कैसी ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स पहनते थे. The Indus Valley people were the first in the world to spin cotton and woolen yarn. Indus Valley के लोग सबसे पहले लोग थे ऐसे दुनिया के जिन्होंने धागा बुनना, यार्न बनाना सीखा. कौन कौन सा? कॉटन एंड वुलन. Means they started weaving, and first they start with the spinning of yarn. This has been confirmed from the discovery of a number of clay spindles. Spindles means चरखे. ऐसे बहुत सारे clay के spindles of different sizes all over these cities मिले हैं discoveries में, और इन्होंने confirm किया है that these people they started spinning cotton and wool. Moreover, needles and buttons have also been found there. These suggest that people of Indus Valley civilization knew the art of weaving and stitching. ये लोग weaving करना, बुनना और सिलना, stitching जानते थे. Men and women, both rich and poor, wore ornaments. ये लोग men और women, चाहे वो अमीर थे या गरीब थे, they used to wear ornaments, means jewelry, necklaces, fillets, armlets means अपनी आर्म्स में ये लोग एक तरह के ornament पहनते थे. And finger rings were common. These were common to both men and women. In addition to these, women also wore girdles. जो लेडीज़ थी वो एक तरह की बेल्ट फॉर देयर वेस्ट दे यूज टू वेयर. ईयर रिंग्स, नोज रिंग्स, एंकलेट्स जो एंकल पर पहनी जाती हैं. आजकल भी आप कुछ गर्ल्स ये यूज़ करती हैं, एंकलेट्स पहनती हैं. बैंगल्स, नोज स्टड्स एंड ब्रेसलेट्स. These ornaments were made of gold. अब मेटल कौन कौन से यूज़ करते थे ये लोग? प्रीशियस मेटल्स थे इनके पास, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी और शेल्स मीन्स सीप और आइवरी मीन्स हाथी दांत. Precious or semi-precious stones were also used in making jewelry. Precious और semi-precious जैसे stones होते थे like diamond, है ना, डायमंड है, अदर नीलम है, मूंगा मीन्स these stones they used to wear, and they used to use these stones in making their jewelry. अब है food. What type of food they used to eat? The people of Indus Valley ate wheat and barley. Wheat और barley इनका main food था. They ground these in milestones and baked them into bread. इनको ये milestones में पीसते थे और उसके बाद फिर इनको इनकी रोटी बनाते थे. इनको बेक करते थे, रोटी की तरह इनको बेक करा जाता था.
राइस टू वॉज अ पार्ट ऑफ देयर फूड, राइस भी इनके फूड का एक पार्ट था. बिसाइड्स दिस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी ये लोग यूज़ करते थे. एंड इसके साथ बिसाइड्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स थे इनके पास, स्पेशली पोमोग्रेनेट, अनार के साथ साथ ये बनानास और फ्रेश वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट वर ऑल्सो टेकन बाय देम एज आइटम्स ऑफ देयर फूड. तो यहाँ आप देख रहे क्ले टॉयज़ बनाए हुए इन्होंने, है ना, क्ले टॉयज़ बनाए हैं, क्ले एनिमल्स, क्ले से इन्होंने द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग and this type of scene they have created with clay. Now occupations कौन कौन से थे इनके पास, occupations में थे इनके पास these occupations they used to एग्रीकल्चर. सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था दैट वाज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन. एंड इसके साथ साथ देयर फील्ड्स वर नियर द रिवर्स, इनकी फील्ड्स कहाँ होते थे, रिवर्स के बिल्कुल पास में. एंड दे बिल्ड स्मॉल डैम्स, इन्होंने छोटे छोटे डैम्स भी बना लिए थे, चैनल्स एंड एम्बैंकमेंट्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर. मीन्स जहाँ पे ये वाटर को स्टैगनेट कर सके, रोक सके, स्टोर कर सके फॉर देयर सप्लाई ऑफ वाटर एज वेल एज फॉर इरिगेशन फैसिलिटी. फॉर इरिगेशन मीन्स कि अपने फील्ड्स में पानी देने के लिए. अब नेक्स्ट उनका ऑक्यूपेशन के फर्स्ट तो एग्रीकल्चर था, ये नंबर 2 हो गया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. सेकेंड ऑक्यूपेशन वाज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वाज अनदर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. ऑक्सन, बुल, शीप, पिग्स, बफलोज एंड एलिफेंट्स वर डोमेस्टिकेटेड. सो इतने सारे ये एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे. कैमल्स एंड एजेस वर यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, मीन्स बोझा ढोने के लिए इन्होंने कैमल्स और एजेस को डोमेस्टिकेट करना शुरू करा. एंड अब ये सेकेंड पॉइंट हो गया. अब थर्ड क्या है, देयर वर कारपेंटर्स, गोल्डस्मिथ, मीन्स इनके अदर ऑक्यूपेशंस क्या थे, कारपेंटर्स, गोल्डस्मिथ, पॉटरी, टॉय मेकिंग, वीविंग, engraving, seal making and bricklaying. ये भी इनके occupations थे. Bead making, tool making, weapon making were the other occupations. So this way we can see that they were not having only 1 or 2 occupations, but a number of occupations were done by them. Now trade and commerce. अब ये trade and commerce business भी करते थे. Trading and commerce were flourishing occupations of the merchant class people. और ये basically merchant class लोगों में ये ज़्यादा popular था. Regular trade was going on between traders of one city and the other. एक city से दूसरी city के traders में भी आपस में trade हुआ करता था. और ये लोग means they used to exchange things, they used to buy and sell things with other cities also. इसके साथ साथ regular trade was going on between traders of one city and the other. They would import precious stones, और ये लोग precious stones भी import करते थे, means दूसरे से लेते थे, दूसरी country से लेते थे. And different metals and other articles from southern and eastern India, from Kashmir, means other parts of the country. Means that time international trade was not there, but national trade was going on there. So they used to exchange things, they used to trade things from other areas of the country. जैसे हमने पढ़ा, they would import precious stones or different metals and other articles from southern and eastern India. वहाँ से लेते थे, साउथ इंडिया से या ईस्टर्न इंडिया से. And from Kashmir also, from Central Asia and Western countries. Similarly, through land routes to Balochistan, अब ये जो आसपास का एरिया था, they started trading with those areas also. जैसे बलूचिस्तान, which is now part of
Pakistan, and Persia. Persia is the other area. Stayed between the Indus Valley and Sumer मीन्स और मेसोपोटामिया एक्सिस्टेड मीन्स यहाँ पे ट्रेड इंडस वैली और पर्शिया के और सुमेर के बीच में एग्जिस्ट करती थी. दिस इज़ रिवील्ड फ्रॉम द न्यूमरस इंडस वैली सील्स. इसमें न्यूमरस सील्स आर बीन फाउंड. इंडस वैली में बहुत सारी ऐसी सील्स मिली हैं जिससे जो कि ऐसा लगता है सुमेरियन साइट्स की हैं. सुमेरियन साइट्स की. द गुड्स वर शिप फ्रॉम लोथाल. गुड्स को शिप किया जाता था कहाँ से? लोथाल से, विच इज़ इन अहमदाबाद. इन्होंने अपना अब शिप करा. वेयर अ डॉक यार्ड. अब वहाँ पे डॉक यार्ड था जहाँ पे शिप्स की मेंटेनेंस होती थी, शिप मेकिंग होती थी. वो डॉक यार्ड वहाँ से डिस्कवर हुआ बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. इनकमिंग गुड्स वर ऑल्सो रिसीव्ड एट लोथाल. लोथाल में इनकमिंग गुड्स को भी रिसीव किया जाता था. नाउ प्ले एंड और अम्यूज़मेंट. अब इनके साथ साथ ये लोग अपनी एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखते थे और उसके लिए ये डिफरेंट टाइप की गेम्स they used to play certain games and certain activities to entertain them. So this was a large number of dices have been found from under the earth. यहाँ इसी एरिया से बहुत सारे डाइसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को. These show that dicing and gambling was a favorite game of these people. इससे पता चलता है डाइसिंग आप लोग लूडो में यूज़ करते हो डाइस. सो आपको पता है व्हाट इज़ अ डाइस. और हम अगर देखते हैं अपने महाभारत पीरियड में, तो महाभारत पीरियड में भी द गेम ऑफ डाइस वाज द रीज़न ऑफ महाभारत. वी नो इट वेरी वेल. सो दे वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. ये लोग डांस म्यूज़िक इसके भी बहुत शौकीन थे. बिसाइड्स दिस hunting, keeping pet animals or birds, or enjoying bullfighting were their other pastimes, means other favorite games with which they used to play or with which they used to watch. A large number of toys and dolls also have been exhibited. यहाँ से खुदाई जो हुई उसमें बहुत सारे टॉयज़ और डॉल्स भी मिली हैं. दे केयर्ड फॉर द प्ले. मीन्स इससे क्या पता चलता है कि ये अपने बच्चों की प्ले थिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते थे. द चिल्ड्रंस टॉयज़ इंक्लूड व्हीसल्स, टॉय कार्ड्स, मार्बल्स, रैटलर्स, क्ले कार्ड्स, टॉय एनिमल्स विद मूवेबल हेड. जैसे कि आज आप लोग भी मूवेबल हेड वाले टॉयज़ बहुत पसंद करते हैं. तो in that period those children of those people, they also had those toys. These toys were mostly made of terracotta and baked clay. ज़्यादातर ये टेराकोटा के बने होते थे या बेक्ड क्ले के. अब नेक्स्ट फीचर इनका है रिलीजन ऑफ द इंडस वैली पीपल. अब ये रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे? तो रिलीजन की हम जब बात करते हैं तो रिलीजन के बारे में देखते हैं हम लोग. अ कॉमन फिगराइन डिस्कवर्ड. एक यहाँ पे एक कॉमन फिगराइन मिली, फिगर एक मिला है, दैट ऑफ अ फीमेल डाइटी. ऐसा लगता है कि वो किसी फीमेल डाइटी मीन्स टू हुम दे वर्शिप, means deity to whom they follow or whom they used to worship. And this is somewhat similar to Shakti or the mother goddess. ये ऐसा लगता है कि मदर गॉडेस या शक्ति के सिमिलर देखने में लगता है. They regarded her as the source of all power. They regarded her all source of power and क्रिएशन. इन्होंने इस गॉडेस को क्या माना है कि इट वाज द सोर्स ऑफ ऑल पावर. ये सब शक्तियों की देवी थी. एंड इसके साथ साथ क्रिएशन मीन्स जो भी इस दुनिया में बना है, जो भी इस अर्थ पे बना है, दैट इज़ ऑल बीन क्रिएटेड बाय दैट गॉडेस.
सिमिलरली अ सीटेड फिगर, इसके साथ एक बैठा हुआ फिगर मिला है जो सिटिंग पोजीशन में है, ऑफ अ मेल गॉड, जो कि एक मेल गॉड की जैसा लगता है, कार्व्ड ऑन ए स्मॉल स्टोन सील, जो कि एक स्मॉल स्टोन सील पे बना हुआ है, हैज़ बीन फाउंड। इट इज़ अ 3-faced गॉड, ये एक 3-faced गॉड है, रिजेम्बलिंग शिवा और पशुपति। ये ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने शिवा या पशुपति, जो कि हम लेटर हिंदुइज्म में देखते हैं, मीन्स दैट पीरियड ऑल्सो दे हैड दिस deity or god. So the people of the Indus Valley seem to have worshipped Shakti and Shiva. इस तरह से हम कह सकते हैं, हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि शायद इंडस वैली के लोग शिवा एंड पशुपति, जिसको उन्होंने कहा शिवा और शक्ति, दोनों को वर्शिप किया करते थे। द पीपल ट्री वॉज ऑल्सो वर्शिप, इसके साथ साथ ये पीपल ट्री की भी पूजा किया करते थे। They also believed in some form of life after death. ये लोग ऐसा बिलीव करते थे, ऐसा विश्वास करते थे कि there is life after death also. So they buried their dead in graves. इसलिए ये अपनी जो डेड्स होते थे उनको ग्रेव्स में बरी करते थे। मीन्स they were not in a culture that they could cremate the dead person, rather they prefer to bury that person in a grave. And उसके साथ साथ so they buried there, and some other practice unburial, कुछ ऐसे भी थे जो unburial करते थे, and they were cremated. They placed the main belongings to the dead like food, or most interesting thing that they were believer in the life after death. So जब they used to bury the dead person, they used to keep the main belongings of the person like food, utensils, ornaments, mirror set, etc. along with, as they thought that the dead might need these things for the next life. उनका विश्वास था कि मे भी उसको आगे ज़रूरत हो उन चीज़ों की, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ एमुलेट्स, अ थ्रेड और तावीज़। एमुलेट्स मीन्स तावीज़, जो आर्म्स में आप लोग बांधते हैं। सजेस्ट दैट दे बिलीव इन मैजिक एंड चार्म्स, ये लोग मैजिक और चार्म से भी, जादू टोने में भी विश्वास करते थे। एंड टू कीप द इविल स्पिरिट्स अवे, ताकि वो अपने पास से इविल स्पिरिट्स को दूर रख सकें, है ना। तो दे हैड दिस, and the discovery of amulets suggests that they believed in magic and charms to keep the evils away. And they had also begun the worship of fire. इन्होंने फायर को भी पूजना शुरू कर दिया था। आर्ट ऑफ राइटिंग, नाउ नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग ये कैसे करते थे? The Indus Valley people used a pictographic spirit for writing purpose. इनके पास writing means इनके पास लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन ये लोग पिक्टोग्राफिक, पिक्चर्स की भाषा से बात किया करते थे। या इनकी ऐसी एक स्क्रिप्ट थी जो कि फिगर्स और पिक्चर्स से बनी हुई थी, और ये पिक्चर्स की और उस फिगर्स के थ्रू अपनी बातों को एक्सप्रेस किया करते थे। बट देयर स्क्रिप्ट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री, और इनकी स्क्रिप्ट आज भी एक मिस्ट्री है, आज भी एक सीक्रेट है। नोबडी कैन आंसर दैट व्हाट एग्जैक्टली दे यूज्ड टू हैव। The script had 62 basic signs in the beginning, और इनकी स्क्रिप्ट में सबसे पहले 62 साइन थे। एंड बट लेटर इन द लेटर हड़प्पन पीरियड 1900 to 1600 BC these signs were reduced to 22, और ये 19 to 1600 BC तक आते आते ये सिर्फ 22 रह गए थे। नाउ नेक्स्ट, एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब एंड कैसे हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का? द इंडस वैली सिविलाइजेशन केम टू सडन एंड, ये अचानक से इसका एंड हुआ। नथिंग सर्टन कैन बी सेड अबाउट द रीज़न
ऑफ दिस सडन एंड। कोई भी इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता सकता कि इसका एंड क्यों हुआ। इट इज़ ऑल अ गेस वर्क। ये ज़्यादातर गेस वर्क है जो डिफरेंट लोगों ने अपनी डिफरेंट कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग बताया है। मे बी द सिविलाइजेशन मेट विद अ नेचुरल कैलेमिटी। ऐसा भी हो सकता है कि सिविलाइजेशन किसी नेचुरल कैलेमिटी से मिली हो, लाइक एन अर्थक्वेक और डिवास्टेटिंग फ्लड और क्लाइमेटिक चेंज or an epidemic. So these could be the reasons, but these are only assumptions. Means nobody has the correct idea about these reasons. But still, it ended contribution, but it has a good contribution. This civilization has given the other civilization a great contribution. So let us see. The Indus Valley civilization has made a rich contribution to the world civilizations as noted below. और वर्ल्ड की दुनिया की सब सिविलाइजेशंस में इसका एक बहुत ही रिच कंट्रीब्यूशन है विच कांट बी इग्नोर्ड। तो फर्स्ट क्या है? बीइंग द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, इट गेव टू द वर्ल्ड द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, फर्स्ट टाउन प्लानिंग, अंडरलाइन करते जाओ इसे, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, फर्स्ट टाउन प्लानिंग एंड यू कैन अंडरलाइन एंड फर्स्ट आर्किटेक्चर इन स्टोन। यही लोग फर्स्ट थे जिन्होंने स्टोन से आर्किटेक्चर को क्रिएट किया। इट्स फर्स्ट एग्जांपल इन सैनिटरी इंजीनियरिंग। यहाँ जो सैनिटरी हमारे को मिला है सिस्टम, दैट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट सैनिटरी इंजीनियरिंग सिस्टम, सीवेज वर्क and civic administration. So the way you are living today, the way we are living today may be matched with the way of living of those people, and we are being lucky to have that civilization in our country, so that it has given so much to our country. Next is the Indus Valley civilization also has the credit of producing pottery and wheeled cart and harnessing the animal force for man's use. इन्हीं लोगों ने ये सब डिस्कवर किया, पॉटरी कैसे बनाई जाए, व्हील्ड कार्ट कैसे बनाई जाए और एनिमल फोर्स को कैसे ह्यूमन बींग्स यूज़ कर सकें, किस पर्पस के लिए ये हेल्पफुल हो सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वर्शिप ऑफ शक्ति एंड लॉर्ड शिवा, respect for certain trees like people, animals like cow and bull could be regarded as a legacy of the Indus Valley people. ये शायद हमें उनकी तरफ से एक धरोहर मिली है, to worship Shakti and Lord Shiva and to respect certain trees like people, जो कि आज भी इंडियन सोसाइटी में होता है। पीपल वर्शिप दैट पीपल ट्री, animals like cow and bull. So these things are still going on, still existing in our society. So hereby our chapter ends, and I hope that you have understood this chapter very well. And now at the last I want to give you some questions as homework or for practice. So first of all, you note down certain words to define. First is dicing. Second is pictographic script. Third is pictographic script. And I have given you certain things in underlined way, and you must go through these underlined portions while you revise for exam, because means they are very important from the point of view of mid of the chapter questions. So we can give you mid of the chapter questions from these underlined portions. So whenever you revise for the test or exam, you must go through the these highlighted portions. Okay, and I hope you have understood. If still you have any doubt, we'll meet in the doubt class. Okay, so thank you and have a nice day and be safe.